Good morning, dear children. Today we are going to discuss Ohm's law. आज हम Ohm's law पे बात करेंगे. आप stay at home, be safe, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, but continue your studies, revise what is taught to you. जो आपको पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करते रहिए. तो I have already taught you charge, potential and potential difference, electric current, how can we obtain the continuous flow of the current in a conductor. And today I am going to explain you Ohm's law. आज हम Ohm's law पे बात करने जा रहे हैं. Ohm's law was given by a famous scientist called Ohm. Okay. So Ohm's law says if physical conditions remain constant, then current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends. That is, at constant temperature, the current flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference across its two ends. At constant temperature, the current flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference across its two ends. अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, फिजिकल कंडीशन नहीं चेंज हो रही हैं, तो करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इसका मतलब क्या हुआ? अगर पोटेंशियल डिफरेंस, इफ करंट इज 1 एम्पियर एंड PD potential difference is 2 volt. When current becomes 2 ampere, then potential difference become 4 volt. If current become 3 ampere, then potential difference becomes 6 ohms. So, in what proportions the current is changing, in the same proportion the potential difference is changing. Now, it means the V is directly proportional to I. Up when we remove or convert the proportionality, sign of proportionality to is equal to, then we use a constant. So here we use V is equal to I into R. R here we use the constant and R is resistance. R is called resistance. R resistance है, I current है, V potential difference है. Or we can write it like this also, V upon I is equal to R. So the ratio of V and I is constant, always constant, and that is the resistance. Now what is the definition of the resistance? The property of a conductor to oppose the flow of current is called resistance. So कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो करंट के फ्लो को चेक करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं. एंड SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की SI यूनिट is
Om. It is called Om. Om. Say Om. Om Shanti Om. Huh? So it is Om. ऐसा unit of resistance is Om. So अगर टेम्परेचर या फिजिकल कंडीशन नहीं चेंज होती है तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, या पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ये ओम्स लॉ कहता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. यू कैन से एनीथिंग now here V is equal to I into R. Here R is the constant and this is the resistance, and resistance is the property of a conductor which oppose the flow of the current. जो करंट के फ्लो को चेक करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो V अपॉन I, दिस रेशियो V एंड I, V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसे हम R कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये ओम्स लॉ कहता है। And I will tell you how we can verify the Ohm's law. This will continue. Okay, thank you and have a nice day. Current. Now we have to verify the Ohm's law. Ohm's law को verify करेंगे। इसके लिए हम एक नाइक्रोम वायर लेते हैं 0.5 मीटर का, हम लेते हैं मिलीमीटर, एमीटर एंड देन वोल्ट मीटर, और एक स्विच लेते हैं एन इलेक्ट्रिक सेल, एंड वी कनेक्ट ऑल दीज इन ए सर्किट. ओके, नाउ फर्स्ट वी यूज वन सेल. पहले हम एक सेल इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. देख रहे हैं आप ये करंट फ्लो कर रहा है, और अब हम रीडिंग लेंगे एमीटर की और वोल्ट मीटर की. एमीटर की रीडिंग 120 मिली एम्पियर है. अब इसको एम्पियर में चेंज कर देंगे, 1000 से डिवाइड करके आ जाएगा 0.12 एम्पियर. और वोल्ट मीटर की रीडिंग 0.3 वोल्ट है. अब क्या करेंगे, अब हम एक सेल की जगह दूसरा सेल, दो सेल इस्तेमाल करेंगे. विल यूज 2 सेल्स ऑफ द सेम वोल्ट, 1.5 वोल्ट. नाउ वी कनेक्ट 2 cells in the circuit as you see here. See that there are 2 cells, and we switch on, the current flows. Now again we measure the reading or take the reading of ammeter and voltmeter. अब ammeter voltmeter दोनों की रीडिंग देखो. एमीटर की रीडिंग जो है 200 मिली एम्पियर है, इसको हम एम्पियर में चेंज करेंगे, वो 0.2 एम्पियर हो गए. और वोल्ट मीटर की रीडिंग है 0.5 वोल्ट. अब हम 3 सेल लगाएंगे, 3 cells we will use, and again we will take the reading. Now the reading of ammeter is 300 मिली एम्पियर. इसे चेंज करेंगे एम्पियर में, हो जाएगा 0.3 एम्पियर. और वोल्ट मीटर की है 0.75 वोल्ट. अब इसकी हम जो रीडिंग ली है, वी विल प्रिपेयर टेबल. ठीक है, इसकी हम टेबल तैयार करते हैं. हमने लिखा कितने सेल हैं, हमने 1 सेल 2 3 सेल यूज़ किए यहाँ पे. उसके बाद रीडिंग लिखेंगे एम्पियर की, एमीटर की एम्पियर में, वोल्ट मीटर की रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर in voltage. And now we find the ratio of V and I. वोल्टेज को एम्पियर से डिवाइड करेंगे. जब इसका रिजल्ट देखेंगे तो ये आएगा 2.5, यानी ये सेम आएगा. इसे V अपॉन I कहते हैं, R रेजिस्टेंस. अब हम क्या करेंगे, VI ग्राफ तैयार करेंगे. एक्स एक्सिस में हम एम्पियर लेंगे और वाई एक्सिस के अलग हम वोल्टेज लेंगे, और इसकी मार्किंग कर देंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.45 लाइक दिस. ऐसे यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे. उसके बाद 0.1 के सामने हम रीडिंग
वोल्टेज की लिखेंगे, द रीडिंग अगेंस्ट द करंट in the all the three cases, and we join all the 3 points so obtained. तो इस तरह से 3 पॉइंट आए हैं हमारे ग्राफ के, उन्हें ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये स्ट्राइन वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। जब कोई दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन आती है। और ये आर कहलाता है हमारा, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सेम है। इसका मतलब है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या है कि अगर I डबल होगा यानी करंट डबल होगा तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगी। अगर करंट 3 टाइम्स होगा तो वोल्टेज भी 3 टाइम्स हो जाएगी। अगर करंट 4 टाइम्स होगा तो वोल्टेज भी 4 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।